चरण पीछे, चरण मेरे पीछे है चरण। चरण पीछे मेरे पीछे। Swami? Sarvadhanam. They heard you yesterday, two girls, and they graduated yesterday. For mobiles on the silent mode. And second thing, others not to take any photograph. Please request. Thank you. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकी वल्लभं नारायणम्। So, Pratap Bhai, the podium for you. Loving Charanams to all of you. I think the lunch and the tea was not. Before I begin, I want all of you to close your eyes and answer my question by raising your hand. Can you do that? Okay, close your eyes. How many of you want me to speak in English? Raise your hand. Okay, hands down. जो चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं हाथ ऊंचा कीजिए। काउंट करेंगे तो इक्वल है। इंग्लिश बोलना अच्छा है। Okay. With humility and love, I offer myself at the lotus feet of my Lord and Master, Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba, with a prayer that He speaks through me only that which is going to be useful to all of you and in the lives of all those who come across, whom you come across. About Bhagwan, we heard from the earlier two speakers how the childhood was, how the development was in Nepal, and how all the ministers and important celebrities come at the lotus feet of Bhagwan. You've all heard of Bhagwan Sri Satya Sai Baba also of Puttaparthi. When Baba last came to Mumbai, at the Cooperage ground, there was 1.5 lakh people. And all the important ministers and Mantralaya people were clamoring to get a small pass to come in the ground. And most of them were to be told with folded hands that साहब जगह बिल्कुल नहीं है, आपको नीचे बैठना पड़ेगा जमीन पे, चलेगा लेकिन हमको पास दो. And the very important people of the Mantralaya were sitting on the ground.
when I look back on that, I feel that we are the privileged few hundreds here who are having such a close darshan of Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba. We have always believed here what Bhagwan says, no one can come to him unless he is called. All of you who are here might think that you have taken your own decision to come here, or you have been forced to come here, or you have been persuaded to come here. No, no and no. You are here only because, and only because, you have been called here for something great to happen in your life hereafter. The message of Bhagwan, Sri Sathya Sai Baba, before that Shirdi Sai Baba, and Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba, all are the same in different words. Someone asked Baba in Gujarat, what is the difference between Shirdi Sai Baba, Sathya Sai Baba, and Sanjay Sai Baba? And Bhagwan replied very nicely, Shirdi, Satya और संजय को निकाल दो, बाकी क्या रहा? साईं बाबा, वो कॉमन है। रूप अनेक, भगवान एक. I've always said this, and this is true because I believe it from the bottom of my heart that the Sai Tattva is the same. As Bhagwan has tried to explain us a number of times, Bhagwan is not a person, Bhagwan is not an object. Bhagwan is the feeling inside you, the feeling of confidence in you, the feeling of great talent in you. Whatever you have in you, that is God. Your great strength, your hard work, that is God. Believe in that. Whether you believe in one God or the other God does not matter at all. They are all the names and forms. God is one. Do not change the picture of your favorite God if things don't work out according to your expectation. इस बाबा ने ये कहा, ऐसे करो, 7 शनिवार करो, 7 सोमवार करो, ये करो, तेल चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये तो बोगस बाबा है, दूसरे बाबा को पकड़ो. दूसरे बाबा ने कहा कुछ सच्चा हो गया, हाँ ये सच्चा बाबा है, इसके पीछे लगो. वापस 3 बार मांगा, 4थी बार नहीं हुआ, ये बाबा को भी छोड़ दो. Do not think, they do not know what harm they are doing to the country. You, the students who are the citizens of tomorrow, are going to change this. Baba in this regard has always said, never curse any other religion or any other custom or tradition. Respect all customs, traditions and religions. चाचा को भला बुरा कहने से पिता खुश नहीं होंगे. चाचा को भला बुरा कहने से पिता खुश नहीं होंगे. All religions are brothers. By cursing the other religion, your religion is not going to be happy with you. That is the wrong thing. Respect. चाचा को respect देने से पिता खुश होंगे. भगवान ने एक भक्त के लिए 3 अच्छी चीजें कही है. ये सच्चा भक्त कौन हो सकता है? 3 good qualities. The 3 A's. अटूट श्रद्धा. ऐसी श्रद्धा जो टूटेगी. आपका काम न बने तो भी ना टूटे. आपके प्रेयर आपको लगता है कि भगवान ने नहीं सुने तो भी ना टूटे. ऐसी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है. श्रद्धा is the postage stamp. अटूट श्रद्धा, अकूट धैर्य, and the third is अचल विश्वास. आधा विश्वास होने से आधा ही फल मिलेगा, पूरा विश्वास होने से पूरा फल मिलेगा. There will be a testing time. Your faith will be shaken. And let me tell you, you are not to be blamed. The senior most people in the organization's faith have been shaken many times. Right or wrong thoughts enter the mind. You have to gear your own personality and see that your faith does not break till I achieve something. And what I will achieve, I will realize that this is God. And when you see God, blindly follow it. It may happen after 10, 20, 30 years. Somebody is going to blame you. कि ये क्या किया हमारे पिता ने, ये क्या किया हमारे दादा ने. Do not worry about that. I address you not as students, but as grown-up
obstacles of the country. Today also people blame Mahatma Gandhi, Indira Gandhi. ये इसने ये क्या, इसने वो क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए. इन्होंने कंट्री को डिवाइड किया. जो उन्होंने उस समय किया, जो उन्होंने सच्चा समझा वही किया. आप भी जो करेंगे, आपको जो सच्चा लगता है वही करेंगे. Let the world say anything they like. Have that confidence in yourself. वैसे तो एक पीढ़ी कुछ पिछली पीढ़ी को हमेशा कोसती रहती है. बहुत रमूज में कहा कि किसी ने, हम भी अरबोपति होते अगर दादा हमारा दीवाना न होता. लोग तो कहेंगे, लोगों का क्या, हमको वही करना है जो हम अंदर से प्रेरणा मिलती है. अंदर से जो प्रेरणा मिलती है वही भगवान है, सच्चा ईश्वर वही है. और आपको जो प्रेरणा मिलती है सभी को मिले है, जरूरी नहीं है. Let the world doubt you. Be yourself. Be on the right path. A senior, very senior devotee asked Bhagwan, am I on the right path? Which is the right path? और बाबा ने कहा, there is no right path or wrong path. You be right and the path will become right. हमको अपने आप को सुधारना है, औरों को नहीं सुधारना है. In future you will become great people. You will have great positions. But do not forget to have values. Without the values which we have been taught by all the five avatars, Satya, Dharma, Shanti, Prema or Ahimsa. Without these values, the position is useless. If you do not have values in position, your position will have no value. सेवा and प्रेम, ये दो भगवान के संदेश कायम ऐसे आए अवतार के. Love all, serve all, help ever, hurt never. भगवान ने हमेशा प्रेम और सेवा के ऊपर जोर दिया है. Why should you do सेवा? Why should you do service to others? मैं खुद का क्यों ना करूं? काफी अच्छा सवाल है जिसका आप मनन कीजिए. आपको पता चलेगा आपको सेवा क्यों करनी चाहिए. और जब पता चलेगा तो there will be no looking back. You will be doing seva for the rest of your life. People have remembered those who have done seva for others. People have not remembered who have done seva for themselves. लोग यश, कीर्ति और सफलता के लिए भगवान को सीढ़ी बनाते हैं. हमको सफलता चाहिए, इस बाबा के थ्रू जाओ. मुझे यश चाहिए, इस संत महात्मा के थ्रू जाओ. मुझे कीर्ति चाहिए, इनके थ्रू जाओ. इनको सीढ़ी बनाते हैं. यश, कीर्ति और सफलता का लक्ष्य पाने के लिए भगवान को सीढ़ी बनाते हैं. अरे मूर्ख, भगवान को ही सीढ़ी बनाओ. यश, कीर्ति और सफलता तुम्हारे कदमों चुक जाएगी. I do not want to take more of your time because I know you are patiently waiting for me to stop and Bhagwan to start for the Divya Sandesh. But before I close, I would like to tell you two stories. I am quite sure all of you like stories. You like stories? Yes. अच्छा लगती कहानी अच्छा लगती है? Okay. एक बहुत ही अच्छी कहानी है. एक व्यक्ति ने जिंदगी में बहुत पाप किए, कोई सेवा का काम नहीं किया, लूटपाट की, खून खराबे किए. You can name the thing and he has done it. All the wrong things in the life. एक बार उसने साधु महात्मा को 108 महात्मा को खाना खिलाया. खाना खिला के उनको वस्त्र का दान दिया और वो काम हो गया. बाकी कभी उसने अच्छा काम नहीं किया. जब वो मर गया तो यमराज के पास दूत आए, कहा You have two choice. What choice? मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया कभी भी. नहीं, तुमको 100 साल की नरक है. कितने साल की नरक है? 100 साल की नरक है और एक दिन का स्वर्ग है. तो चॉइस क्या है मेरी? चॉइस ये है कि पहला तुमको एक दिन चाहिए या 100 साल चाहिए. और 100 साल तो नरक में कब सड़ता रहूंगा तो एक दिन कब आएगा? पहले एक दिन तो मजा करूँ मैं स्वर्ग में. तो बोला ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि एक दिन का स्वर्ग मुझे क्यों मिला? बोला कोई चोपड़ा देखा कि तुमने एक बार 108
साधुओं को खाना खिलाया था, वस्त्र दान दिया था। अच्छा, उसके लिए 100 मिलता है एक दिन का? हाँ, इतना काम किया 100 मिलता है। तो बोला पहले मेरे को फर्क में डालो। फर्क में क्या होता है? जो तुम बोलोगे, तुम चाहोगे मुंह से बोलो हो जाएगा। अच्छा, मैं बोला भोजन आज आ जाएगा, आ जाएगा, वस्त्र आज आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, तो एक दिन का तो राजा बनूं मैं। उसने सोचा कि सारी जिंदगी में मैंने एक अच्छा काम किया सेवा का, और मुझे एक दिन का स्वर्ग मिला है। उसने तुरंत ऑर्डर किया 10,000 साधुओं का भोजन तैयार किया जाए और 10,000 साधुओं को दक्षिणा वस्त्र दान किया जाए। तुरंत तैयार हो गया, 10,000 साधुओं को खाना खिलाया गया। पूरे 24 घंटे में 24 बार उसने अच्छे सत्कर्म किए। वो बोला ठीक है, अभी मेरा समय पूरा हो गया, मुझे आप 100 वर्ष के लिए नर्क में डाल दो। तो वहां पे दूत आए और कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव एन एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर। एक दिन 24 घंटे में इतना काम किया तो 1 साल का स्वर्ग मिल गया मुझे। उसने 1 साल तक अच्छा काम किया और उसको एक्सटेंशन 100 साल का मिल गया। और उसने अच्छे काम करते ही रहा कि नर्क उसका उधार ही रहा और स्वर्ग में ही हमेशा के लिए कायम के लिए रह गया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम ऐसे ही दुविधा में पड़े हैं आज भी। हमें भी आगे का नर्क और स्वर्ग याद सामने खड़ा है हमारे। हमें सत्कर्म करने हैं, हमें सेवा करना है, ताकि हम कभी नर्क में ना जाए, तो हमेशा स्वर्ग का सुख भोगते रहे। ये कैसे हो सकता है? सत्कर्म करने से, सेवा करने से, but being human beings तो हम है ही, but we have to be human। आकार मानव और आचार मानव में बहुत फर्क होता है। आकार से तो मानव ही है, हमारे आचरण से मानव होना जरूरी है। being human, that's important। एंड हमारे संजय सेवा ऑर्गेनाइजेशन से आप सबको निमंत्रण है कि हमारे सेवा के कार्य में आप कभी भी जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा भी कुछ सेवा कार्य आपको मिले। आप सेवा के कार्य में आ सकते हैं। ग्राम सेवा है, मेडिकल सेवा है, गरीबों को खाना खिलाने का सेवा है, बहुत सेवाएं चल रही है। जो ऑल्सो इन्वाइटेड। नेपाल में तो आपने सुना कितना अच्छा कार्य, सुंदर कार्य हो रहा है। भगवान की कृपा से और मोटिवेशन से हमारे बॉम्बे में भी इतना अच्छा कार्य भी होना शुरू हो गया है। और बाबा ने कहा है कि आगे चल के बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा कार्य होगा, स्थायी जगह भी होगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। दूसरी कहानी ये आपको कहना चाहता हूँ शॉर्ट में। हमारे मिलिट्री का ट्रेनिंग चल रहा था, लेफ्ट राइट कहते हैं। एक सैनिक के कदम गलत पड़ रहे थे, लेफ्ट बोलो तो राइट हो रहा था, राइट बोलो तो लेफ्ट हो रहा था। तो पता चल जाता है कि पूरे बटालियन में इतने लोग हैं, लेफ्ट राइट में आवाज बराबर एक आदमी का बराबर नहीं जाता है। कैप्टन ने देखा उसको भी समझ में आ गया कि मेरे कदम ठीक से नहीं गिर रहे हैं, कुछ तकलीफ होने वाली है, पनिशमेंट मिलेगा मुझे। लेकिन कैप्टन ने कुछ नहीं कहा। परेड पूरा होने के बाद कहा, यू देयर सी मी इन ऑफिस। बोला खत्म, मेरे को अभी राइफल ऊपर लगा के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे कि कदम तो गलत ही हो गए मेरे। ऑफिस में बुलाया, कांपते कांपते ऑफिस में आया, हाथ जोड़ के, प्लीज सिट डाउन। मैं ठीक हूँ। नहीं बैठो बैठो। दूजे बैठा, क्या पियोगे, चाय पियोगे? मारने के पहले बकरे को खिला रहा है पूरा। नहीं कुछ नहीं है। बोला पियो पियो। सुबह सुबह चाय मिला तो मिला, ब्रेड मिला तो मिला, ब्रेड के ऊपर जैम मिला तो मिला, तो फिर तुम्हारा कदम पे कदम क्यों नहीं मिला? तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरी गलती है, वो मुझे सुधारने का ये तरीका है। भाई और बहनों, भगवान ने हमें इतना अच्छे जन्म दिया है, इतने अच्छे कर्मे पैदा किया है, अच्छे माँ बाप दिए है, अच्छी पढ़ाई दी है, पैसे दिए, सब कुछ अच्छा दिया है। क्या हमारे कदम भगवान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो एक दिन वो भी पूछेंगे कि आपके कदम पे क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।
आज से हम प्रैक्टिस करना शुरू करें, भगवान के नक्शे कदमों में हम चलेंगे और ऐसे चलेंगे कि आखिर में भगवान तक ही पहुंचे। आज का जीपीएस का जमाना है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गाड़ी में भी होता है ना, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, अज्ञान आवाज बोलती है कि टर्न लेफ्ट, आप यहाँ ले किलोमीटर, हम लेफ्ट टर्न कर लेते हैं तो मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं। हमारा मॉडर्न जीपीएस है गॉड पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे भगवान कहते हैं ऐसे करेंगे तब मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो यही भगवान का संदेश है, हमें फॉलो करना है। और मैं मानता हूँ, हृदय से इसे कहता हूँ कि इस दुनिया में कहीं भगवान है तो यही है, यही है और यही है। When we sacrifice, we get the benefit. But now what has become to all of us? We don't believe in sacrifices. We don't believe in giving. So let us hear from Bhagwan what he is going to advise us. Bhagwan, request for my students and my teachers as well, Swami. All my students and children have responded today. People shows their respect. It is the respect comes from your heart, not by standing or not by clapping or not by clicking a photo from your mobile. Especially I don't like clicking all the time pictures from mobile, because precious moment that you must catch from your eyes and it will remain for a long in your brain. Because brain is the system where never virus comes. But your computer, your laptop, your mobile, definitely all the time virus will be there. So thank you very much to call us here. Or I am not such an educated person. I have left my study in class 10 to serve the people. I thought that education system should be changed. And what the spirituality actually people want. Because spirituality, adhyatma jo hai, people are taking as a formality always. ये करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, यहाँ मत जाओ, ऐसा ना करो। मुझे ये चीज पसंद नहीं थी, इसीलिए 14 years में मैंने, जबकि क्लास स्टैंडर्ड 10 में हमारे यहाँ एसएलसी एग्जाम होते थे, तो मैथ्स का एग्जाम चल रहा था, नेशनल एग्जाम देते देते मैंने सोचा मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। तो मैंने मैथ्स तो पहले से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था एक्चुअली, साइंस और मैथ मुझे दिमाग में नहीं घुसता था। हर एक का प्रॉब्लम होता है, जो मैथ और साइंस में कमजोर होते हैं, शायद स्पिरिचुअलिटी में उनका दखल ज्यादा होता है। तो मैंने लिख दिया पेपर में कि थैंक यू सर फॉर योर टीचिंग, और नीचे 2 भजन भी लिख दिया मैंने। बाद में रिजल्ट आया तो उसका भी 2 मार्क्स आया मेरे को। एंड आई थैंक माई टीचर and I came with my bag. I throw my bag in a house. From that day I said, my mother, this is not my work actually. I want something, I want people to know something better